Officially begin, sir. Assalamu Thank you. alaikum, everyone. Assalamu alaikum, sir. Uh, I'm your host today from ETL. First of all, a short introduction to ETL Online. It is basically a non-profit organization. For those of you who are new here, I'm presenting this again. It's basically a non-profit organization that aims at providing information and knowledge to all our students and recent graduates. We aim to create an online tech community to empower our students. We have our esteemed guest here, Sir Kashi Ahmed. Sir, I won't spoil your introduction. मैं चाहता हूँ कि आप खुद introduce करें so that everyone can know. चलिए, thank you, Mutahir. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you, ETL and all the admins for ETL and management to invite me today. So, अच्छा ये medium of communication English Urdu mix अगर है या any preferred Mutahir? Sir, you can do both. Okay. चलिए जी, so मेरा नाम काशिफ अहमद है. I go by Kashi. That's why a lot of people know me by Kashi here. In the state, I was born and raised हैदराबाद पाकिस्तान में, सिंध में. वहाँ पे born and raised हुआ, वहाँ से intermediate किया. उसके बाद कराची चला गया. कराची में I did my computer engineering from Sir Syed University in Karachi. After that, I worked there in the ISP Cybernet. And since 2000, in year 2000, I came to US for my master degree in computer science, and since then I've been here. तो मुझे almost 25 years हो गए हैं टेक्नोलॉजी में. बैकग्राउंड जो है मेरा वो स्टार्ट हुआ एज अ डेवलपर, वेब डेवलपर था, एंटरप्राइज डेवलपमेंट, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म. आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क एट मैनी डिफरेंट एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म. आप उनमें पीपल सॉफ्ट कर दें, जावा कर दें, माइक्रोसॉफ्ट कर लें, सेल्सफोर्स कर लें, CRM, half a dozen CRM कर लें, Sybase हैं. So I've done all my fair share of that. Last 10 years से I have been working with Salesforce, which is the number one SaaS provider in the industry, especially known for CRM solution. I manage the team of technical architect in the pre-sales. So make pre-sales, technical pre-sales area में financial services domain है, उसको I manage. And here I am to help you guys. I'm a technologist that I say with a business technology combination that I bring to the table. So I always try to give back, help other people with anything that I have learned in my 25 years. जिसकी ऐसे आज मैं यहाँ पर हूँ कि अगर AI का जो स्पेशली जो AI का टॉपिक है, I've been very bullish about it क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, टेक्नोलॉजिस्ट हूँ. So I've been रीडिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दोज. एंड आप लोगों को भी मिली होगी जो वीडियोस मैंने शुरू में क्रिएट की थी, जस्ट टू गेट अ basic understanding of AI. With that, I will end here. This session is all about Ask the Expert. That means I'm here for next 1 hour. मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए. आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो AI से स्पेसिफिकली रिलेटेड, क्या करना है, कैसे करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ मूव होना है, या फिर आपने जो है ना कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका जो है ना क्वेश्चन है, आई एम हियर टू आंसर. प्लीज फील फ्री. व्हाट डू यू दैट? Thank you so much, sir. Sir, I'll begin with my first question. Basically, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि जो बात हो रही है वो असल में है किस बारे में. Since AI has become a buzzword आजकल, so I would like you to answer कि AI का सर जो core concept है वो क्या होगा? How did it originate and come into being? सही है शरण जी. सो AI देखें, AI कोई नई चीज नहीं है, काफी अरसे से इस पे काम हो रहा है. ठीक है ना. 1950 से इसके ऊपर जो है ना काम चल रहा है AI के ऊपर. वो हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ी थी. इन सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट मेकिंग द मशीन स्मार्टर तो थिंक लाइक ह्यूमन. ये सिंपल है कि आप जो हम जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो भी एक अब क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं चीजें, एक ऑटोमेशन करने कहते हैं कि कंप्यूटर वो काम करना शुरू करते हैं. नाउ टू हैव कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन, कि उस तरह स्मार्ट उसमें इंटेलिजेंस पुट कर दी जाए ताकि ऑटोमेशन गोस टू नेक्स्ट लेवल. दैट्स व्हाट द AI इज ऑल अबाउट. और यही सबसे पहले इन द हिस्ट्री एक ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है वो हुआ था. उसमें यही एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ था कि व्हाट कैन वी डू टू हैव मशीन थिंक लाइक ह्यूमन. तो अब क्या है, पहले जमाने में
we did not have infrastructure, we did not have hardware, software, और उस तरह नहीं अवेलेबल था, काफी एक्सपेंसिव था, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना ये की, दे वर नॉट वेरी कॉमन। तो काम तो काफी होता रहा है। जैसे आप अगर अमेजोन का रिकमेंडेशन इंजन देखें, या आप बोलते हैं ना नेक्स्ट बेस्ट, आपने ये प्रोडक्ट आपको लाइक करेगी, या नेटफ्लिक्स का आप जाकर देखते हैं ना कि आपने वीडियो देखी है तो बोलता है मे बी यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है, प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसकी छोटी छोटी एप्लीकेशन हो रही थी विद द यूज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी। दैट्स वेयर इट स्टार्ट गेटिंग इनटू द masses, हैंड ऑफ द masses, जहां पे एवरीबॉडी, आम बंदा भी अब उसको यूज कर पा रहा है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? डज इट हेल्प? यस सर, श्योर डज। बट सर, एआई के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे बज़वर्ड्स सुनने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो हाउ डू दे रिलेट टू एआई? तो ये ये मुख्तलिफ टर्म्स हो रहे हैं एआई से रिलेटेड, टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको मार्केट में सुनने को मिलेंगे। इन सिंपल तो एआई जो इन सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ एआई क्या है कि आपको इनपुट आ रहा है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म का मतलब है कि आप टेक्स्ट के बेस पे कर रहे हैं, इमेज के बेस कर रहे हैं, ऑडियो के बेस पे कर रहे हैं, वॉइस के बेस पे कर रहे हैं, वीडियो के बेस पे इनपुट आ रहा है आपको ना। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स लिखे हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते थे ना, हमने लिंक लिस्ट कर दिया, दूसरी कर दिया, तो एआई के अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो भी एक उसी टाइप का एल्गोरिदम है। आई विल टॉक अबाउट ट्रांसफार्मर लेटर। ठीक है, अब वो उधर सारा मैजिक होता है, देन यू हैव अ आउटपुट। अब वो आउटपुट डिफरेंट टाइप का है, प्रिडिक्टिव है या जनरेटिव है। प्रिडिक्टिव की जैसे मैंने आपको बात की थी, तो प्रिडिक्टिव वही है जैसे अमेजॉन और नेटफ्लिक्स की मैंने एग्जांपल दिया आपको। जनरेटिव क्या है, जिसमें आप नया आउटपुट जनरेट हो रहा है और उसको सिस्टम ऑलरेडी थिंक कर रहा है और नई चीज जनरेट करके आपको दे रहा है। तो ये सब करने के अंदर क्या है, डिफरेंट आपके जो ना कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, उसमें यह है कि वो एल्गोरिदम, वो पैटर्न्स हैं जो कि रन किए जाते हैं, जिससे दैट स्टार्ट मेकिंग प्रेडिक्शन डेटा के बेस पर। सर डेटा आपने उसको काफी दे दिया कि एक्स हो रहा है, वाई होती है, तो सिस्टम लर्न, मशीन लर्न फ्रॉम इटसेल्फ के जो डेटा के बेस पे जो लर्न हो रहा है ना, उसको वो देखता है कि भाई यार ये एक्स आया था, ये वो आया था, तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। ये है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये इस काफी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग यूज होती है। अच्छा, उससे नीचे अगर आप चले जाएं तो मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट होता है, डीप लर्निंग। ठीक है, तो एक और टर्म आप सुनेंगे, डीप लर्निंग की टर्म। डीप लर्निंग जो है उसका मकसद क्या है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, ट्रांसफॉर्मर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम है, जिसमें सिस्टम स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इटसेल्फ। कि पहले तो ये था ना, डेटा की बेस पे वो लर्न कर रहा है, वो मशीन लर्निंग हो रही है, मशीन लर्न करिए भाई ये इनपुट आया, ये आउटपुट आ रहा है। पर नाउ मशीन इज लर्निंग फ्रॉम इटसेल्फ, द आउटपुट मशीन इज क्रिएटिंग, और उसकी बेस पे देख रहे हैं ओह ये वजह से हमारा दिमाग काम करता है ना, न्यूरल नेटवर्क, इसीलिए वो उसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। कि या ये मेरी कॉम्बिनेशन थी, इससे ये आया, इसका आउटपुट ये था, वो खुद अपना रिकर्सिव रूप में लर्न कर रहा है। ओह ये हुआ था तो मैंने ये कहता, तो नेक्स्ट टाइम भी जैसे आपने एक सिंपल एग्जांपल है डीप लर्निंग की, कि मैंने एक सिस्टम को इमेजेस दिए कि एप्पल और ऑरेंजेस के इमेजेस दिए बहुत सारे, हर तरह के हिसाब से, और मैंने उसको बताया कि ये एप्पल है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड एप्पल है, और ये डिफरेंट टाइप का एप्पल है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मैं इनपुट दे रहा हूँ। और ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, येलो होता है, ये सर्किल, दोनों सर्किल होते हैं। ठीक है ना। अब डीप लर्निंग क्या है, नेक्स्ट टाइम आप उसको एक एप्पल का इमेज दोगे तो उसको पता चल जाएगा नहीं इस तरह की शेप मेरे पास जो पहले आई थी, वो मेरे पास उसको मैंने क्लासिफाई किया एप्पल, तो ये ऑरेंज नहीं है, ये कोई और फ्रूट नहीं है, ये एप्पल ही है। सो दैट व्हाट इट विल से नो। अब वो खुद जो नोट पे उससे लर्न करके आपको आउटपुट दे रही है। इसी तरह जो आपने चैट जीपीटी किया है, वो जनरेट, उसमें ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज होता है, राइट। तो उसमें ट्रांसफॉर्मर मॉडल का जो है, उसमें के नेक्स्ट प्रिडिक्टिव वर्ड क्या होगा, जब आपने बोला ना मुझे एक ऐसे लिख के दे दो इस टॉपिक पे, तो उसको इतना डेटा फीड किया गया कि उसकी बेस पे बोलता है अच्छा ये टॉपिक है, इस पे मैंने पहले ये किया था, उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, उस हिसाब से वो चलता है। तो दो आर द हाई लेवल टर्म, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई दैट यू लर्न। Thank you so much, sir. Sir, I'll move on to anyone. If anyone else have any questions in the chat, feel free to ask any question in the chat. I'll take the first turn here.
सो काशिफ भाई, थोड़ा सा आई थिंक आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि पहले एआई के अंदर द मोर फोकस वाज ऑन द प्रेडिक्शन पार्ट, राइट? और जी अब जो एक नया एक बज क्रिएट हुआ है मार्केट में, वो ज्यादातर अब जनरेशन की तरफ या जनरेटिव पार्ट की तरफ है. सो थोड़ा सा अगर हम जरा डिटेल में समझने की कोशिश करें, द टेक्नोलॉजीज विच आर एनेबलिंग, पहले कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जो कि प्रेडिक्टिव पार्ट पे या प्रेडिक्शंस के जी ऊपर थी, और अब जो हैं कुछ नई टेक्नोलॉजीज जो कि जनरेटिव पार्ट के ऊपर है, ताकि बच्चों को जरा ये sure. आइडिया हो जाए कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है, राइट? बिल्कुल, जरूर जरूर, डेफिनेटली. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन. तो उसको भी आई विल गो थ्रू. अगर जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने किसी भी ऑडियंस से आप लोगों ने देखनी है, इसको करना है, तो जो लिंक दिया हुआ है मेरी वीडियोस का, दे एक्सप्लेन इट आल्सो फर्दर. तो आप उसको देख के आपका रिवीजन भी जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि ये जो दोनों क्वेश्चन आए हैं, दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. जो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरी है सबको, कि यार इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो थैंक यू इरफान भाई. तो पहली पहली बात हम करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ प्रेडिक्टिव का और इसका. ठीक है. अब प्रेडिक्टिव का तो इवोल्यूशन अगर आप देखें ना, तो गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, जितने हैं, सबसे वहां से शुरू हुआ हुआ है. जैसे बताया, एआई पे बहुत अरसे से पहले से काम हो रहा है. जब आप गूगल पे लिखते हैं, आप अभी गूगल पे जाए, लिखें व्हाट इज द, और आई एम लुकिंग फॉर दिस, वो ऑलरेडी आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन में बताएगा कि मे बी यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर दिस. वो प्रिडिक्ट करता है कि आपके रीजन में, आपकी एज पे, इस एरिया में इस तरह की सर्च सबसे ज्यादा होती है इस टाइम पे, इस सीजन में. मतलब इट गोज वेरी डीप डीप मशीन लर्निंग के हिसाब से. तो वो उसके हिसाब से एक आइडिया गैस लेता है कि मे बी यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर दिस. जैसे अगर कहीं पे अभी आप देख लें, जैसे पाकिस्तान में जलसा चल रहा है, राइट, एहतजाज हो रहा है. अब गूगल पर आप गए और आपने जाके देखा व्हाट इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद लिखने से पहले ही आपके पास इस्लामाबाद लिखा हुआ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 100,000 ऑफ पीपल ऑलरेडी सर्चिंग फॉर इट, दैट द करंट इवेंट गोइंग ऑन, राइट. तो वो प्रिडिक्ट कर रहा है, उसको पता नहीं है, ये नहीं कि वो आपका दिमाग रीड कर रहा है. इट्स एक्चुअली डूइंग बेस्ड ऑन डेटा. तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन लर्निंग जो हुई थी, दैट्स व्हाट इट इज डूइंग. बेस्ड ऑन द डेटा इज प्रिडिक्टिंग दैट पार्ट आपको. तो वो जो थे, वो लैंग्वेज मॉडल्स हैं. जैसे गूगल की जो सर्च है वो है लैंग्वेज मॉडल, जिसके अंदर फिर उसके बाद क्या हुआ, आया लार्ज लैंग्वेज मॉडल. जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू हुई ना, और प्रेडिक्टिव की मैंने इरफान भाई एग्जांपल जैसे आपको दी थी. आपका यूट्यूब पे आप देखते हैं, आपकी वीडियोस आ रही होती है साइड पे, और बताते हैं मे बी यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, मे बी दैट्स द नेक्स्ट वीडियो. वो आपका इंटरेस्ट देख रहा है कि किस टाइप की वीडियोस आप देखते हैं, किस तरह की वीडियो आप लाइक करते हैं, किस तरह की वीडियो आप लाइक नहीं करते, किस तरह की वीडियो पे आप ज्यादा टाइम लगाते हैं, किस तरह की वीडियो पे आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते. ऑल दैट डेटा जो जा रहा है उसके अंदर, राइट, that is being used from the machine learning to predict the next thing. Same thing with Amazon, same thing with Netflix and all those. So ये हो गया आपका प्रेडिक्टिव साइड, और लैंग्वेज मॉडल की एग्जांपल मैंने दे दी. अब आ जाए आप जनरेटिव साइड. जनरेटिव साइड में क्या है, उधर एक टर्म आई है हमारे पास, एलएलएम्स. एलएलएम्स की जो टर्म्स है उसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है. दीज आर अगेन, जैसे पर आपका, दे आर एआई models, which are advanced model defined to learn from the context, do the deep learning, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया, and help you predict और generate सब new output. उसका मेन डिफरेंस क्या होता है प्रेडिक्टिव से, कि it uses not only data, it also using algorithm. So it taking the existing content and creating new content based on its own learning and existing data. ये है जनरेटिव पार्ट. ठीक है ना. सो इट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एंड मेकिंग इन न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट. जिसमें हमने सबसे पहले एग्जांपल अगर आप देखें, जिसमें आपके चैट जीपीटी की आप एग्जांपल लें, ठीक है, तो उसके पीछे जो आपका चैट जीपीटी मॉडल है, जीपीटी जो है, ठीक है ना, वो गूगल ने ये सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर मॉडल के नाम से एक स्टार्ट किया था. दिस वाज एक्चुअली गूगल वाज बिहाइंड इट, द फ्रॉम द फॉर द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, बिफोर द चैट जीपीटी इतना फेमस हुआ. इससे पहले गूगल ने सब कुछ करना शुरू किया था. और सितंबर 2021 में जब उन्होंने, ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया, तो इट जस्ट कॉट फायर, है ना. एवरीबडी वाज प्लेइंग विद इट, एवरीबडी वाज प्लेइंग डूइंग विद दैट. तो उसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दो तीन जीपीटी की, जनरेटिव वाले पार्ट की, चैट जीपीटी आपका है, आप उस पर जाते हैं और आप बोलते हैं यार मुझे XYZ ये लिख दें, एंड इट हैज बीन, उसने पूरा इंटरनेट क्रॉल किया है.
रेडिट, सर्च इंजन, विकिपीडिया, आपके ब्लॉग, सारी इंफॉर्मेशन लगा के उसको फीड कर दी गई है। जैसे मैंने एप्पल ऑरेंज की आपको एग्जांपल दी थी ना, प्रेडिक्शन की इसकी। अब नाउ जब वो आप उसको आस्क करते हैं तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये जो मॉडल है ना, इट्स ओनली चैट जीपीटी का, इट ओनली फोकस ऑन गेसिंग द नेक्स्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस जो जनरेट करता है वो। ठीक है, तो उसको इतना डेटा फीड किया गया, इतनी चीजें बताई गई हैं जिसके से इट्स एबल टू क्रिएट दैट। इसीलिए कभी कभार अगर आप देखें तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि शुरू में अगर आप उसको पूरी अच्छी तरह से नहीं बताएं कि आप क्या चाहते हैं, तो वो हेलुसिनेट भी करता है। हेलुसिनेट की एक टर्म होती है, वो अपनी तरफ से चीजें बना देगी, सिस्टम जो है ना अपनी तरफ से चीजें बना देगा, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। तो इसलिए उसमें एक टर्म आप सुनना शुरू करेंगे कि प्रॉम्प्ट, कि जब आप जनरेटिव मॉडल चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं तो प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉम्प्टिंग क्या है? इनपुट इंस्ट्रक्शन जो आप उसको दे रहे हैं सिस्टम को। अगर आप वेरी जेनेरिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्रिएट, सिंपल से लेना कि आप उसको बोलते हैं कि क्रिएट मी अ कोर्स ऑन, एक कोर्स क्रिएट करके दो मुझे ऑन हाउ गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग। वो आपको जर्नलाइज टर्म में प्रोग्रामिंग की इतनी बुक्स लिखी गई हैं, इतनी चीजें बता दी गई हैं, उसके हिसाब से जर्नलाइज आपको एक कोर्स आउटलाइन भी बना देगा, राइट। और उसमें क्या पता जावा यूज करे, क्या पता कुछ और लैंग्वेज यूज करे, किसकी बेस पे करे, बिकॉज यू डिडंट से एनीथिंग। वो अपनी तरफ से जो डेटा है उसके बेस पे आपको दे देगा। अगर उसी को मैं चेंज कर दूं, बोलूं नहीं मुझे आप 4-5 वीक्स का गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन एक कोर्स बना के दो, जिस जो कि उन बंदों के लिए हो जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की गई है और जो वीकली 4 आवर्स से ज्यादा नहीं लगाए। इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, और एट द एंड उसमें एक प्रोजेक्ट हो। अब जब ये प्रॉम्प्ट देंगे, अब वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जा रही है, तो आपका आउटपुट भी बहुत जबरदस्त आएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट आउटपुट आएगा। तो इसे कहते हैं प्रॉम्प्टिंग एंड ग्राउंडिंग। तो पहले एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट करना, जिसमें आपने स्पेसिफिक होना है, आपकी टोन है, आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है, और फिर आपने इसको ग्राउंड करना है। ग्राउंड का मतलब ये जो मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया था ना, वो करने का। आई नो इरफान भाई काफी लंबा आंसर था, पर मैं काफी एग्जाम्पल के साथ पूरी ये सारे कॉन्सेप्ट एक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होपफुली दैट हेल्प्स। Sir, we have जी other जी। questions lining up. हाँ, एक एक ज़िमनी सवाल इससे वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज्यादातर अब ये एलएलएम्स वाला काम है, दिस इज इसकी जो बेसलाइन है वो एनएलपी हुई, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एम आई करेक्ट? नेशनल लैंग्वेज प्रोसेस इज पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो उसमें तो चलो एनएलपी है कि अगर मैंने नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट जो इमेज टू टेक्स्ट टू इमेज है या इमेज टू वीडियो है, राइट, वो मॉडल है, देयर इज नो नेचुरल लैंग्वेज इन देयर, राइट। उसमें तो मैंने एक इमेज दे दिया और मैं उसको एनिमेट कर दो, देयर इज नो नेचुरल लैंग्वेज इन देयर। तो वो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज मॉडल्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड, एनएलपी इज पार्ट ऑफ दैट। इसके साथ साथ आपका जैसे जो मॉडल है आपका, एक मॉडल है जो आपका विजन के नाम से, राइट, विजन के लिहाज से, दैट मीन जो मैंने आपका एप्पल और ऑरेंज की एग्जांपल दी, इमेज की बेस पे आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि मैंने कैमरा लिया, पिक्चर ली, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका यूज केस आपको बताता हूँ। मैंने कैमरा लिया, पिक्चर ली, गाड़ी के कहीं लग गई है और मैं उसको कैमरे से देख रहा हूँ, आई एम आस्किंग द एआई ये डैमेज हुआ है, इसकी फिक्स क्या होगी। तो पिक्चर से रिकग्निशन कर से इमेज रिकग्निशन करके इज गोना लुक फॉर एंड गिव मी द आउटपुट, हो आपका फेंडर बेंड हो गया, इसका फिक्स ये होगी। दूसरा ऑडियो बेस है आपके, राइट, जैसे आपके मैंने वॉइस दे दिया, क्लोन कर दिया, मैंने वॉइस दे के डिफरेंट क्लोन करके दे दिया, या वॉइस टू इमेज के मैंने कर दिया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, एनएलपी इज पार्ट ऑफ दैट टू। थैंक यू। Sir, we have a और मैं, question in the chat. जी बोलें। Sir, someone is asking कि we always thought that there are only two types, generative and predictive. But recently, मैंने भी कुछ नई terms सुनी है जैसे reactive machines, limited memory, theory of mind, self-aware AI, और super intelligent AI. So, what is your take on these terms? देखिए, टाइप ऑफ एआई जो है ना, वो तो आपको हाई लेवल पे तीन ही है, ठीक है। अगर आप हाई लेवल पे इसको बात करें, एक तो आपकी है नैरो इंटेलिजेंस। नैरो, ये तीन टर्म आप सुनेंगे, नैरो इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस की, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, ठीक है। नैरो इंटेलिजेंस क्या थी
जो कि हम काफी अर्से यूज करते आ रहे हैं, इट्स कॉल्ड एएनआई इट्स कॉल्ड वीक एआई, जिसमें आपने थोड़ा सा टास्क दिया, जैसे चेस थी, आपको पता चला होगा 10 साल पहले, हे कंप्यूटर ने चेस ग्रैंड मास्टर को बीट कर दिया, राइट? लास्ट फ्यू इयर्स अगो अल्फा गो वाला बीट हो गया था, राइट? तो दैट्स कॉल्ड वेरी स्पेसिफिक फंक्शन, smart system designed for very specific function, and they're so smart doing the repetitive task, जैसे चेस हो गया, और जो आपके फेस रिकग्निशन है, कैमरे में जाते हैं, फेस रिकग्निशन आपको जाती है, राइट? लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, very specific, right? Designed for that. So those are called artificial narrow intelligence. That is one type of intelligence. अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद आती है आपकी artificial general intelligence. That's where we are right now. Artificial general intelligence, that's where we are अभी बाबा मीटिंग में, right? उसमें क्या है कि now AI is doing more intellectual task जो human भी कर सकता है. For example, जो इरफान भाई बोले थे, natural language processing. मैं नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं और समझ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी नया आर्ट क्रिएट हो रहा है, मैंने बोला मुझे एक नई पिक्चर बना के दे दो, इट्स क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट? जस्ट बाय गिविंग द प्रॉम्प्ट इट्स क्रिएटिंग अ न्यू आउटपुट फ्रॉम दिस. तो वो है एजीआई, जिसपे जहां पे अभी हम हैं, पर अभी भी वी आर नॉट एट द लेवल ऑफ द एजीआई, इज नॉट बीन 100% अचीव. जैसे अभी आपने अगर कल इस वीक में ओपन एआई की डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट दे सेड द न्यू enhancement which are happening is becoming AI agents. AI agents जो होंगे वो ये होंगे कि they can do the task by itself. अभी क्या है, अभी हम AI एज अ यूज करें एज अ असिस्टेंट, कि मुझे कोडिंग में हेल्प चाहिए, मुझे ऐसे राइटिंग में हेल्प चाहिए, मुझे इमेज क्रिएटिंग में हेल्प चाहिए, मुझे वॉइस में चाहिए, मुझे वीडियो बनाने में चाहिए, इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिंग फॉर मी, आई एम गिविंग द प्रॉम्प्ट. अब नेक्स्ट हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, सिंपल इंटेलिजेंस पे नहीं आए हम जनरल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं. तो जनरल इंटेलिजेंस में नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? एजेंट्स के लिए. एजेंट्स आर ऑटोनोमस एजेंट, उसको पता है मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है, एंड आई क्रिएटेड द एजेंट इज क्रिएटिंग द टास्क फॉर इटसेल्फ एंड एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग. मुझे इतना इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है. तो उस लेवल पे ये मैं. थर्ड लेवल जो है, जिसके लिए काफी आपने देखा होगा बैक क्रैश भी आया था, काफी पुश बैक भी हुआ था कि यार ऐसा तो नहीं कि इंसानों की जॉबें खत्म हो जाएंगी, ये मशीन टेक ओवर कर लेंगी, टर्मिनेटर जैसी वो हो जाएगी. उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो कि आपने मार्वल की मूवी में देखा है, जो आपने टर्मिनेटर में देखा है. वो ये है कि सिस्टम एआई विल सरपास इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस. ठीक है, वी आर नॉट देयर येट. ठीक है, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस पर काफी कंसर्न्स भी हैं, जिसकी वजह से काफी रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं असाइन हो रहे हैं. तो अगर आप बात करें, ये जो जिन भाई ने भी क्वेश्चन पूछा है बहन ने, कि दीज आर द 3 टाइप ऑफ एआईज वी हैव. आप उसके अंदर जो आपने बात करते हैं पता है कि आपने क्या बोला था, 2-3 चीजें जो आपने लर्न की रिसेंटली. super intelligence and reactive machines. अब तो सुपर इंटेलिजेंस तो टाइप हो गया, अब रिएक्टिव है या आपके ऑटोमेशन है, दोज आर जस्ट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ जनरल एआई. ठीक है ना, मैं वो चल गया. मुताहिर में एक रिकमेंडेशन मेरी ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स के लिए अभी जरा आज का सेशन अगर जरा इंट्रो लेवल पर रखा है, क्योंकि ये जो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद अभी ये वाली टर्म्स इतनी फेमिलियर ना हो, राइट? सो प्योरली फ्रॉम अ नेक्स्ट स्टेप पर्सपेक्टिव, जैसे शकील भाई ने कहा एजेंटिक एआई, मैंने भी रिसेंटली एक अटेंड की है प्रेजेंटेशन फ्रॉम इन्फोटेक रिसर्च ग्रुप. आजकल बहुत ज्यादा काम एजेंटिक एआई, यानी कि पहले एआई जो था वो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आपको स्टेप्स जनरेट करके दे देता था, या चैट जीपीटी, राइट? तो अब वो जो स्टेप्स हैं ऑटोमेट, यानी कि जो बॉट्स हैं वो आपके वो स्टेप्स परफॉर्म भी कर रहे हैं. सो फ्रॉम अ कैरियर पर्सपेक्टिव एजेंटिक एआई इज प्रॉब्ली समथिंग दैट यू गाइस शुड फोकस ऑन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा आगे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स होंगे आपके. सो कीप द क्वेश्चंस टू वेरी अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे रखिए मुताहिर क्वेश्चंस को, ठीक है? और मोर ऑन जो वर्दा ने ये बात पूछी है, एक्चुअली ये अगर मैं तो बड़े हाई लेवल पे 3 टाइप्स आपको बोल दी, तो आपने जो रिएक्टिव मशीन की, लिमिटेड मेमोरी मशीन की, इसकी जो बोली है, तो दे फॉल इनटू द जनरल इंटेलिजेंस वन. जो सेल्फ अवेयर एआई वाली जो आपने बात बोली है, दैट फॉल्स इनटू द सुपर इंटेलिजेंस वन, राइट?
तो और इतनी तेजी से इस पे एडवांसमेंट हो रही है, इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं कि देखिए सितंबर 2021 में आया था। इट फील लाइक इज लाइक सितंबर 2021 में जब चैट जीपीटी अनाउंस हुआ, जब से लेके अब तक देयर अ डे नाइट डिफरेंस। जो चीजें सालों में होती थी वो पहले महीने, अब तो हफ्तों में वो रिलीज होकर चीजें चेंज हो जाती हैं। Sir, I'll move on to something interesting. आपने पाइथन मेंशन की तो मेरे वहाँ पे कान खड़े हो गए थे। सर मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर, तो जी can you actually give us a roadmap कि how a web developer can actually switch to AI, या anyone beginning as a student first semester में अभी अभी हम join हुए हैं, how will they start their AI journey? All related. वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम तो जो आप लोग जो अभी मौजूद हैं वो लोग कर रहे हैं, फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट और बिकम अ यूजर ऑफ आल्सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। सबसे पहला काम, यू गाइस हैव अ स्केड्यूल टू एटलीस्ट स्पेंड एन आवर अ डे, या 4 hours a week, समथिंग लाइक दैट, लर्न अबाउट कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। ठीक है, इट्स चेंजिंग सो मच, देयर सो मेनी रिसोर्सेज टू एजुकेट योरसेल्फ कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आज का सेशन है, काफी कंटेंट मौजूद है इंटरनेट पे, उसको समझना, अच्छा ये बेसिक फंडामेंटल एआई की क्या है, देन यूजिंग दोस टूल व्हिच आर देयर। आई डोंट नो, अगर आई थिंक आई कैन से if everybody can create click on the reaction button in the Zoom and tell me how many use chat gpt or Leonardo or Midjourney or any type of AI tool on weekly basis। चैट में लिखें या रिएक्शन बटन से थम्स अप करके मुझे बताएं अगर हाउ मेनी ऑफ आर डूइंग इट। So we have almost how many folks? We have almost 16, 17 folks right there, and I see 5 of them doing this. Then how many of you are every week or every day at least watching one video or reading one blog or reading one article about AI or following any internet any social media person who kind of providing the update about the AI or watching any podcasts? Okay. So looks like the few of those. So आउट ऑफ अभी अगर हमारा इसमें ही देख लें मुताहिर आपके क्वेश्चन के कि इतने सारे बंदे हैं जिसमें से अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 20% of folks are spending time and doing that, right? तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप मैं बोलूंगा, बिफोर यू इवन थिंक यार मैं एआई कैसे सीख के क्या करूं, अपने आप को अप टू डेट और अपने आप को इन लूप रखें कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन मार्केटिंग गाइस, आप एंड्रू एनजी को फॉलो करें जो कि डीप लर्निंग डॉट आईओ का बंदा है। ही हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ शॉर्ट कोर्सेज ऑन डीप लर्निंग डॉट आईओ पे। ठीक है, आप एनवीडिया ने अपने कोर्सेज कर दिए हैं, आप देखें माइक्रोसॉफ्ट के अपने एआई के फ्री कोर्सेज हैं, आईबीएम ने अपने एआई की फ्री कोर्सेज प्रॉम्प्टिंग की। तो फर्स्ट थिंग, लर्न, स्पेंड टाइम ऑन सम बेसिक कोर्सेज, लर्न अबाउट प्रॉम्प्टिंग, यूज दोस टूल। अभी आप मैं अगर आप लोग फेस टू फेस होते तो बोलता आप अपना फोन दिखाएं, बताएं कि किस किस का कितनी एआई की ऐप मौजूद है। आई हैव ऑलमोस्ट 12 ऐप्स जो मैं वीकली बेसिस पे यूज करता हूं। मेरा डेली का यूज है चैट जीपीटी का, इसका एंथ्रोपिक क्लाउड का, और आप जना पाई डॉट एआई का, या आप जना परप्लेक्सिटी का ले लें। यूज दोस टूल, एजुकेट योरसेल्फ, प्रैक्टिस दैट, ताकि आप टॉप पे हो जाएं। ठीक है, तो दैट्स फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, शॉर्ट कोर्सेज और जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स। थर्ड स्टेप, start contributing. There are more than 500,000 open source AI model available on Hugging Face. So I don't know how many people of you know about Hugging Face. Hugging Face पे जैसे फेसबुक ने मेटा ने अपना पूरा जो लामा, उनका जो ओपन एआई और उनका जो एआई का मॉडल है, इज ऑल अवेलेबल ऑन हगिंग फेस। 500,000 से ज्यादा फ्री मॉडल अलीबाबा ने अभी अपना डाला है। ठीक है ना, यू कैन डाउनलोड देम, यू कैन एक्चुअली बिल्ड एन एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ दैट। आपको शुरू से स्टार्ट भी नहीं करनी, क्योंकि एआई के मॉडल ट्रेन करने में काफी रिसोर्स चाहिए होती है। इट्स वेरी intensive for hardware and capacity and processing and all, काफी कास्ट लगती है इसके ऊपर।
ये तो उस पे मैं मशवरा दूंगा, go look at it. At least I know one guy from Islamabad who actually used one of the model. They created a course automation kind of software and using one existing model और उसके हिसाब से and they're making money out of it. जब ये 2-3 आपके काम हो गए, आप प्ले कर रहे हैं, contribute back to them. Third thing is now as a JavaScript developer, as a web developer, हर फील्ड के अंदर is more about now how you use AI feature, libraries आ रही हैं, दूसरी चीज आ रही है फ्रंट एंड एप्लीकेशन बन रही है। अब तो आप पूरी पूरी एप्लीकेशन, पूरा गेम, पूरा सॉफ्टवेयर आप एआई से बना सकते हैं, राइट? तो प्ले विद इट। मैंने ऑनेस्टली मैं आपके सामने अगर मैं डेमो देना चाहूं, आपके सामने आई कैन क्रिएट यू टेल मी क्लाउड पे, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा। मैंने अपने बच्चों को करके दिखाया था कि सिंपली आई एम गोना क्रिएट अ टिक टैक टो गेम, राइट? टिक टैक टो गेम करें जो हम जब मैजिक स्क्वायर जब प्रोग्रामिंग में सीखते थे, कितनी लाइनें आपने लिखनी पड़ती हैं, कितनी चीजें करनी पड़ती है। नाउ स्टार्ट प्लेइंग विद इट, उसको प्ले करें, लिखें उसके उसके ऊपर। तो मैं आपको क्विकली शो करता हूं ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो आपका क्वेश्चन आई लाइक इट, क्योंकि कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, मैंने करना कैसे, खेलना कैसे इसके साथ। तो मैं यहाँ क्लाउड पे आया हूँ, आप क्लाउड है, चैट जीपीटी कुछ भी यूज कर लें। ये टिक टॉक गेम, टिक टॉक गेम इन जावास्क्रिप्ट। सो आपने जावास्क्रिप्ट बोला? Yes, sir. देखिए जी, इसकी नजर आ रही है मेरी? Yes, sir. I can see your screen. अब मैंने सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, ये टिक टैक टो बन गया। अब आपको मैं बोलता हूँ ताया लिखने के लिए कितना टाइम लगता है? ये सर 2 प्लेयर गेम हो आधा गया एक है, घंटा तो लगता है। सही है ना? ये मुझे कितना टाइम लगा? अब मैं बोलता हूँ नाउ द अपोनेंट कंप्यूटर अपडेट द कोड, और मैंने जावास्क्रिप्ट का ये किया है। इसको मैं बोलता हूँ, इसको लेके जावास्क्रिप्ट के जाए इसको जावा में कर दो, पाइथन में कर दो, किसी और चीज में कर दो। आप ये देखें हमें सीखना कितना आसान हो गया है। अब मैं इससे लेके एप्लीकेशन कर दें, कोई भी वेब एप्लीकेशन का है, कोई भी डिफरेंट चीज है, आई कैन जस्ट डू दैट। ठीक है, अब देखें इसमें क्या हुआ, और ये आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इससे आप बोले मुझे पूरा एक्सप्लेन करें, इट कैन एक्सप्लेन इट टू। नाउ आई एम प्लेइंग विद द कंप्यूटर। आई होपफुली दैट आंसर योर क्वेश्चन कि कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। मेरा मेन टेकअवे ये, प्लेइंग विद इट, लर्न अबाउट इट, स्पेंड टाइम, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंट टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ये नहीं कि आप अभी एक्साइटेड हुए, आज का सेशन हुआ और मैं अभी एआई पढ़ूंगा और फिर अगले 4 हफ्ते तक आपने उठा के देखे नहीं, या तो ये नहीं हो जाए। आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा लगाएं, डेली लगाएं, आर्टिकल पढ़ें। बल्कि आपने फर्ज करा आपको, अब तो आपको किसने नोटबुक एलएम अभी तक देखी है? नोटबुक एलएम जो गूगल ने अनाउंस किया है, हु हैव सीन दैट? एनीवन? किसी ने नहीं Sir, देखा, I think nobody knows about it. राइट? तो अब वो आप देखें, कोई भी आपकी वीडियो है, 2 घंटे की लेक्चर है, स्कूल का वीडियो है, कोई भी आपने टेक टॉक देखी है, आप उसका यूआरएल यूट्यूब को उसको देते हैं, इस क्रिएटिंग अ 15 मिनट पॉडकास्ट फॉर यू, जो आप बैठे बैठे फोन पे सुन लें। तो प्ले विद दोस टूल्स एंड देन आपको क्या होगा, अचानक फिर आप देखेंगे आप जैसी लर्निंग आपकी वो बढ़ती रहेगी। आपको नजर आएगा यार, मे बी इसकी ये एप्लीकेशन में देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे, मे बी आई कैन डू समथिंग। नाउ यू कैन डू इट इवन फास्टर। चलिए, Sir, एक बाकी मैं क्वेश्चन ऑडियंस से बोल रहा हूँ जी। है, एक क्वेश्चन है that we missed in the chat, I think, about supervised and unsupervised learning. I know I'm bringing this back to the topics we discussed before, but I would like Ms. Hajra to actually answer this. Have this answer. So how would you define supervised and unsupervised learning, and how do we know which approach to use? तो सर ये जो different हमारे पास topics हैं, हमारे पास different algorithms हैं, as I might say. How do we know कि हमने कहाँ पे कौन सा apply करना है, especially about supervised and unsupervised learning?
सो देखें, सुपरवाइज लर्निंग की जो मैं पहले एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी थी इमेज रिकग्निशन की, राइट, सुपरवाइज लर्निंग उससे में आती है. दीज आर नाउ मोर इनटू द डेप्थ ऑफ द वंस हाउ यू ट्रेन द मॉडल, व्हाट काइंड ऑफ AI मॉडल यू आर क्रिएटिंग, कि वो एल्गोरिदम जो प्रिडिक्ट करें आउटकम डिपेंडिंग ऑन रिकग्नाइजिंग द पैटर्न्स, कि इन पैटर्न के बेस पे वो सुपरवाइज लर्निंग जिसमें आप उसको, जिसमें एक्यूरेसी आप मेजर कर सकें ओवर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे इमेज रिकग्निशन की मैंने आपको बात की, स्पैम, हमारी जीमेल में अगर आप जाएं, स्पैम डिटेक्शन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, इस तरह की चीजें. ठीक है. अनसुपरवाइज लर्निंग, दिस इज अनदर टाइप ऑफ हाउ यू ट्रेन द मॉडल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. उसमें जैसे जिसमें न्यूरल नेटवर्क वगैरह ये सारी चीजें रहती हैं, दैट इट लुक फॉर द पैटर्न्स. जैसे डीप लर्निंग की जो हमने बात की थी ना, that comes into unsupervised learning, जिसमें it look for the not only for algorithm but also the pattern, and without human intervention, right, without our own telling it what to do, it learn from the inside data and algorithm to make the new outcome for that. That's called the unsupervised learning. So unsupervised learning में जैसे आपने आप ये देखिए जीपीटी की जितनी एग्जाम LLM की जितनी एग्जाम्पल दें, या आपने अभी कस्टमर सर्विस बॉट्स बनाने, राइट, नॉलेज बेस आपने सपोर्ट कर दिया हुआ है, आप कॉल इन करते हैं, अभी आप किसी भी कस्टमर सर्विस कॉल पे कॉल करते हैं तो इट्स वेरी बोरिंग. प्रेस 1 टू डू दिस, प्रेस 2 टू डू दिस, प्रेस 3 टू डू दिस, राइट. और आप फिर बोलते हैं एजेंट पे आ जाओ, एजेंट पे आ जाओ. दैट्स कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि आपने उसको बकायदा बता दिया इस तरह. अब जो ऑटोनोमस एजेंट वाली बात आ रही है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, उसको इतना डेटा और नॉलेज बेस जिसके अंदर रैग जो है, रिट्रीवल ऑगमेंट रियलिटी जनरेशन जो है, पीडीएफ और आपने डेटा दे दिया है, राइट, इट्स क्रिएटिंग द इंडेक्सिंग फॉर द सर्च इंडेक्स बना रहा है और लर्न कर रहा है. अब आप उससे बोलते हैं, हे मेरा जो है ना एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है. That's a very right. Now, based on the analysis, data or insight और patterns जो उसने देखे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इसका सोल्यूशन हमें क्या दिया जाता है, मुझे क्या कस्टमर बोला है, the response will be very human centric response. So that's more like unsupervised learning. So how do you decide what to use? It all depends on your use case. What are you trying to get? So आज आपने जो पूछा था कि आपका आउटपुट क्या है, क्या यूज केस क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, क्या चाह रहे हैं उससे करना, देन यू विल डिफाइन व्हाट इट इज. Sir, I have another question. Also, I would like to take this moment to mention that any questions in the chat are accepted. Feel free to ask any questions that you have, and I'll ask them from sir. So the question that I have right now is, sir, AI जहाँ पे एक buzzword है, वहाँ पे Python is also a buzzword in the community. So is Python the only tool that we can use to start our AI journey? Yeah, it's C# developer, or like I said, Rust developer, JavaScript developer भी start कर सकते हैं project. Technically, most of the language you can start with technically, right? जैसे R शुरू हुई थी, लिफ्ट तो बहुत पुरानी हमने पढ़ी थी, जावा है, सी की भी लाइब्रेरीज आ रही हैं, जावा स्क्रिप्ट में हर एक की लाइब्रेरीज आ रही है. पाइथन जो है वो पॉपुलर इसलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें फ्रॉम द it becomes from the Google and the open source project, it got the very big adoption, is very easy to understand, very simple to do this, right? Lot of community support है, lot of आपको libraries और सारी चीजें available है. So that's why the Python is kind of more like a choice, but Java, C++ language, you would find you can start with that. Thank you, sir. So we have another question in the chat from Mr. Haris. We often see that sometimes generated data lacks accuracy and correctness. My question is, how is this generative AI going to affect generated content correctness and accuracy, as ultimately this generated data will be fed to models in the future? That is a good question. Sir, हम किस तरह पर accuracy check करेंगे, because data पे ही सारा कुछ बन रहा है. बिल्कुल. सो वेरी गुड क्वेश्चन हारिस. सो यहाँ पे मैंने जो बात की थी आपकी हेलुसिनेशन की, ग्राउंडिंग की, दैट कम्स टू प्ले. ठीक है ना. तो अगर आपने अभी आप रिसेंटली भी अगर देखेंगे, काफी चीजों में लोग इमेज जनरेट कर रहे थे, काफी सेलिब्रिटीज का, काफी लोगों का, एंड इट विल क्रिएटिंग द, बल्कि क्या हुआ, सम बायसेस भी होती हैं, क्योंकि अगर आपका डेटा आपका पूरा अच्छा नहीं है तो आपका आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा. तो क्या हो रहा था कि आई थिंक द वन इंसिडेंट हैपेंड, देन दे वर आस्किंग फॉर एआई टू जनरेट सम इमेजेस फ्रॉम द DALL-E 3, और वो सारे इमेजेस अफ्रीकन अमेरिकन
स्किन टोन में आ रहे थे, क्योंकि डेटा वाज ओनली जनरेटेड बाय दैट। ठीक है ना। तो यहाँ पे बायसेस हो जाती हैं और वहाँ पे जो है ना हेलुसिनेशन हो जाती है। एक हेलुसिनेशन इसलिए होती है कि आप जब एआई क्योंकि जनरेट कर रहा है ना नया रिस्पॉन्स, तो मैंने डजंट फाइंड एनीथिंग, इट ट्राइड टू मेक अप समथिंग। तो उसका सोल्यूशन क्या है? मोर ग्राउंडिंग ऑन द प्रॉम्प्ट, मोर कॉन्टेक्स्ट ऑन द प्रॉम्प्ट, मोर गार्डरेल अराउंड इट। जैसे काफी लोगों ने क्या किया था, दे स्टार्ट क्रैकिंग द एआई सेइंग हे, उससे आपने कोई सवाल पूछा दैट इज नॉट एथिकल और नॉट लीगल एंड एआई वाज ट्राइंग टू गिव द आंसर। नाउ सिस्टम में उधर गार्डरेल पुट की गई है, व्हेन समटाइम दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, या किसी सेलिब्रिटी या किसी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो इट विल से सॉरी आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। या आप बोले, अगर आप कोई बोले अच्छा मुझे ये बताओ कि बम कैसे बनाते हैं, तो जनरेट है। और इस पे काफी रूल लॉ भी आ रहे हैं। कैलिफोर्निया में भी लॉ ये आ रहा है कि वो यही बोले कि अगर कोई बंदा एआई सिस्टम को यूज करना चाहे फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, तो उसके लिए जिस कंपनी ने मॉडल कराया कि तैयार किया है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। राइट, दैट वाज वन ऑफ द लॉट डिस्कशन हैपनिंग, क्योंकि वो कंपनी पे जिम्मेदारी कर रहे हैं कि कोई बंदा इन टूल्स को गलत तरीके से यूज न कर सके। और आपको पता है ये टूल्स और चीजें हैं एवरीबडी यूज फॉर गुड और बैड पर्पस, राइट। तो जो सिस्टम्स अब जनरेट हो रहे हैं उसमें हेलुसिनेशन रिमूव करने के लिए आप देखें तो उसमें ग्राउंडिंग और अब एक जो मास्टर प्रॉम्प्टिंग अगर ये शुरू हुई है, जैसे अभी चैटजीपीटी ने और क्लाउड ने इन लोगों ने अनाउंस किया है, देन व्हेन यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट टू अ सिस्टम whether any generator, so it's actually creating its own prompt to go through, give you the answer. It's calling master prompting from master grounding prompting। जैसे आपने बोला मुझे बुक लिख दो या मुझे XYZ पे रिसर्च कर दो, तो उस आउटपुट को देने के लिए इस क्रिएटिंग इट्स ओन प्रॉम्प्ट टू ग्राउंड इटसेल्फ, कि किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, क्या देना चाहिए, ये चीजें। तो उसका सोल्यूशन ये जो आपने बात पूछी कि प्रोवाइड मोर एंड मोर कॉन्टेक्स्ट, provide more and more अपना grounded prompt to get the right result that you have, उस लिहाज से। इसमें मैं if you allow me काशी भाई, तो जी जी जरूर। also answer this। मैं दो अगर क्वेश्चंस को इकट्ठा टैकल करने की कोशिश करूं बेस्ड अपॉन माय लिमिटेड नॉलेज एंड इफ यू कैन प्रॉब्ली करेक्ट मी काशी भाई। एक जो सवाल पूछा गया था सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, तो एक एग्जांपल तो ये है कि आज अगर आप चैट जीपीटी से कहते हैं ना कोई कोड जनरेट करने को, तो वो कोई कोड जनरेट करता है एंड देन यू टेल चैट जीपीटी कि नहीं यार ये गलत जनरेट किया है, इसमें इस तरीके से होना चाहिए, एंड देन इट सेज कि ओ सॉरी, राइट, और फिर वो सॉरी करके उसको करेक्ट कर लेता है। सो इन अ वे आप उसको सुपरवाइज तरीके में मैनुअली आप उसको समझा रहे हैं कि नहीं यार जो तुम्हारी डेटाबेस में या तुमने जो अभी तक चीजें लर्न की हैं उसके अंदर ये मिस्टेक, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो हारिस ने क्वेश्चन पूछा है, जनरेटिव एआई मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चूंकि इट बेसिकली लीड्स सॉरी चैट जीपीटी टाइप की जो चीजें हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इसके अंदर कीवर्ड है लैंग्वेज मॉडल्स, यानी कि वो लैंग्वेज जो कि लोगों ने लिखी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ कोड, और उससे मॉडल ट्रेन हुआ, राइट। तो चूंकि वो लैंग्वेज मॉडल्स हैं एंड दोज आर नॉट बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, लाइक आज की तारीख में ऐसे मॉडल्स एग्जिस्ट नहीं करते एंड पीपल आर वर्किंग ऑन दोज कि जो कि ये बता सके कि ये C++ या सी में पॉइंटर उसका इंजीनियरिंग प्रिंसिपल क्या है, राइट। जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज मॉडल की एक पॉइंटर के ऊपर है, हमारे जो बच्चों को अक्सर पॉइंटर्स नहीं समझ में आते सी के, राइट। सेम इज द केस विद द मॉडल, क्योंकि उसको जो आप डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं वो उससे लर्न कर रहा है। अब जिन मॉडल्स के ऊपर काम हो रहा है वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बन रहे हैं कि यार अब हम स्पेशलाइज्ड किस्म के मॉडल्स बनाएं जो कि नॉट नेसेसरली लर्न करें अपने आप को लैंग्वेज मॉडल से, बट पोटेंशियली कैन आल्सो लर्न ऑन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। उसकी बेस के ऊपर जो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर जो कोड जनरेशन होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी और हेलुसिनेशंस भी कम होंगी। ये अगेन और ये बिल्कुल सही बोला इरफान भाई आपने। और हारिस का सवाल एक्चुअली बहुत पावरफुल है, क्योंकि देखिए अगर डेटा आपका एक्यूरेट नहीं है तो बायसेस और अनरिलायबल एआई मॉडल बनेंगे। इसकी लिहाज से इंडस्ट्री में अभी काफी काम हो रहा है, हाउ टू मिटिगेट दैट, हाउ वी कैन इंश्योर द डेटा क्वालिटी जो मॉडल्स में जा रही है, राइट। दूसरा, इम्प्लीमेंटिंग एथिकल गाइडलाइंस।
एथिकल गाइडलाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का आउटपुट, जैसे आजकल इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो लोग काफी फेक पिक्चर्स बना के दे कैन स्वे द ऑडियंस एंड ऑल दो, तो एथिकल। और अभी आप देखें जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं उनमें आप एक वाटर मार्क आना शुरू हो गया है एज अ डिजिटल वाटर मार्क, इट इज एआई जनरेटेड, इट इज बीइंग नाउ टोल्ड टू ऑल द कंपनीज जिनका मॉडल है कि दे हैव टू मेक श्योर इट सेज द एआई जनरेटेड, ताकि लोग कन्वे। तो एथिकल गाइडलाइंस पे काफी काम हो रहा है, जो इसको सोल्यूशन की मैं आप बात करूं, ठीक है ना। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इन द लूप। तो एक जो इरफान आपने बात की कि एआई लर्निंग फ्रॉम दैट फीडबैक दैट ह्यूमन इज प्रोवाइडिंग, अच्छा मैंने ये जो कोड लिखा था इसमें गलती थी, इसका सही आउटपुट ये है दैट। और दूसरा ह्यूमन ओवरसाइट जो है डेवलपमेंट के अंदर जनरेटिव एआई में, वो कॉर्पोरेट लेवल पे तो बहुत हो रहा है कि बिफोर द आउटपुट कम्स इन they want to see, oh, is it a good output, is that the same thing that user was expecting or not, तो वो भी काउंट हो रहा है in to do the recursive learning for the AI model. Sir, I have another question. बातों बातों में मेरा एक पिछला सवाल था वो आंसर हो चुका है about ethical biases and unbiased and biased models. So एक और सर इरफान ने चीज डिस्कस की थी कि these are large language models, और हम बेसिकली जब चैट जीपीटी को बताते हैं कि ये आपने गलत किया तो चैट जीपीटी रिप्लाई करता है कि सॉरी, आई विल करेक्ट दिस। तो कैन इट बी रिवर्स इंजीनियर्ड इन अ वे कि हम चैट जीपीटी को खुद प्रॉम्प्ट करें, बिकॉज आई हैव एन इविल माइंड, तो क्या पता मैं चैट जीपीटी को खुद कहूं कि नहीं इट्स ओके, एक्सपर्ट इन इट एंड इट्स माय जॉब, तो क्या मुझे चैट जीपीटी बता देगा? आप बीच में ब्रेकअप हुई थी आपकी आवाज, तो आपने दोबारा रिपीट करेंगे कि उसने गलत आउटपुट दिया आपको, तो ना आप उसको ये बोलने के इट इज द राइट आउटपुट? Yes, sir. Basically, I'm asking for a bomb recipe, and ChatGPT is like, no, I cannot share that with you due to any unethical reasons or whatever. But I'm like, nahi, it's my job, and I can do it. So will ChatGPT get that bias from me? कि नहीं मैं इसको बता सकता हूँ? वो लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू, ये सीधे अगर आप कोशिश करेंगे अभी तो आप देखेंगे, अगर आप एक साल पहले कोशिश करते तो आपको काफी आंसर मिल जाते। काफी लोगों ने किया, उन्होंने वर्चुअल मशीन लेके दे एक्चुअली ट्राई टू क्रैक इट, काफी चीजें की गई ना। नाउ अ लॉट ऑफ गार्डरेल्स आर बीइंग पुट टुगेदर देयर दैट मे नॉट रिस्पॉन्ड टू, से है आई एम नॉट असाइन्ड टू डू दैट, आई एम नॉट डिजाइन टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो डिफरेंट मॉडल्स बनते जा रहे हैं, तो उसमें वो गार्डरेल्स जो होंगी उससे आपको, यू माइट गेट सम प्लेसेस, आप माइट से, जैसे आप बोलेंगे मुझे टेल मी हाउ टू, एक मेरोवाना का जो चर्च का है, मेरोवाना का मुझे फार्म बनाना है, आप बोलेंगे नहीं 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 ये तो ड्रग है, आप क्यों बना, बोला नहीं नहीं मैं तो मेडिकल मेरोवाना की बात कर रहा हूँ, मैं इसके ये बेनिफिट करूंगा, तो इट विल गिव यू द आउटपुट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, है ना। पर सिस्टम, because these are smart system, they are going to learn how many people are asking, what is the trend going on and how it is being used and all those, तो उसके से गार्ड पुट की जा रही है। तो उसमें जैसे अब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके समझते हैं आपकी बाकी क्वेरीज भी वो एनालाइज हो रही होंगी, किस तरह की आप ऐप पूछें, किस तरह के आंसर आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो वो जितने भी अभी बड़ी कंपनी ने दे स्टार्ट पुटिंग दोस गार्डरेल अराउंड इट, ताकि लोग उसको क्रैक करके रिवर्स इंजीनियर करके ये वो नहीं करें, बट देयर स्टिल वेज दैट यू कैन गेट समथिंग अबाउट इट। इज स्टिल नॉट परफेक्ट राइट नाउ, मैं ये बोलूंगा, काफी लोग हैं, इज नॉट परफेक्ट बट कम्युनिटी इज स्टिल वर्किंग ऑन इट, गेटिंग फीडबैक एंड दीज आर इंप्रूविंग डे बाय डे। सर, तो अगर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो मेरा एक और यहाँ पे सवाल बनता है कि व्हाट अबाउट द एसडीएलसी ऑफ एआई? एक बिगिनर है, ठीक है, ही जॉइंस अ फर्म, तो हाउ विल ही फेस ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एआई, सराउंडिंग एआई? मतलब वो बिगनर क्या एआई के मॉडल क्रिएट करने पे काम करे, डिपेंड करता है ना। जैसे आपको कोई एलएलएम बनाना कोई आसान बात थोड़ी है, ठीक है ना। देयर आर नॉट सो मेनी कंपनी हु कैन बिल्ड देयर ओन एलएलएम, it takes a lot of horsepower, resources and all those. So you might be just using a fine tune, some LLM that is like Llama, Meta ka, right? Which is already trained. You just might be just fine tuning it. The basic information, basic things already are in there. You might be using it fine tune and also build an application on top of that. जो AI engineers हैं, which are working, right? Who might be like, if you are working for NVIDIA, if you're working for Google, if you're working for OpenAI and all those kind of stuff. So those, then you are talking about very deep type of programming, learning and training and going back and forth in this. Or it's not easy. It's a complex process. That's why आप देखें ना कितना
कितना पुशबैक आता है जब कोई नया रिलीज आता है, पीपल फाइंड डिफरेंट वेज टू यूज इट एंड इट गोज बैक और फिर उसको फिक्स किया जाता है। बट द स्पीड इट इज गोइंग, दैट इज फिनोमिनल। लाइक जो इस तरह की स्पीड इनोवेशन की जो हो रही है, वी हैव नेवर सीन बिफोर। और एक चीज में आप बैक टू मुताहिर आपके पहले भी क्वेश्चन पे कि हम क्या करें, ये मैं ऑडियंस को जरूर बोलूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली ऑल द यंग किड्स इन द ऑडियंस राइट नाउ, दिस इज वन ऑफ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। जितने बच्चे मौजूद है ना, हम हमारे जमाने में .com का बूम आया था, वी मिस दैट वन। देन सोशल मीडिया बूम आया, मोबाइल का बूम आया, एवरीथिंग मोबाइल ऐप, देन सोशल मीडिया का बूम आया, राइट? दैट वी हैव मिस्ड ऑल ऑफ दोस। अब ये जो एरा चल रहा है एआई का, इस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर इस पे हमने बैठे रहे, हमने कुछ भी नहीं किया, तो वी विल मिस द बोट। और मैं हर एक को जो बोलता हूँ कि यू हैव 3 ऑप्शन। जब इस तरह की टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन होती है इंडस्ट्री में, यू हैव 3 ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप यू आर अ कटिंग एज पर्सन, मीन्स एवरी वीक एवरी डे आप स्पेंड कर रहे हैं, टाइम प्ले कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यू आर लिविंग ऑन द एज, यू आर ट्राइंग एवरी न्यू न्यूज, एवरी न्यू मॉडल, एवरी न्यू टूल्स आप कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव। सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव, दैट पीपल से नहीं यार कुछ भी नहीं होना, ये भी क्रिप्टो जैसी चीज हो गई, ये भी वेब3 जैसी चीज हो गई, कुछ भी नहीं होना इस चीज का, ठीक है? एंड यू बिकम अ नेसेयर, ठीक है? वो नहीं करना हमने। थर्ड ऑप्शन जो है, जो एटलीस्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कि थर्ड ऑप्शन इज यू लर्न अबाउट इट एंड यू प्रिपेयर इवन दो आप उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, start learning about it, spend time what is happening in all those. This is the third option I will always recommend for everyone in the audience, कि आप उस पर पढ़ें, टाइम लगाएं, कंसिस्टेंट बेसिस पे लगाएं, then you will find a way to contribute. ओपन सोर्स इतने सारे प्रोजेक्ट है, उसमें कंट्रीब्यूट करें। ईटीएल का अपना एक इनिशिएटिव ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने का, प्ले विद इट अपने, और दूसरा शेयर करें इन्फॉर्मेशन, जो आप लर्न कर रहे हैं उसको शेयर करें दूसरों के साथ, टाइम लगाएं, गिव बैक। सिखाने से बंदा ज्यादा सीखता है। जैसे एक ये है फ्यूचर टूल्स हो, ये साइड है, मैं फॉलो करता हूँ, मैंने चैट पे भेजी है। इट जस्ट क्यूरेट ऑल द न्यू टूल विच आर हैपनिंग। दिस इज द गाय मैट वुल्फ, वो पूरे वीक की जो एआई की न्यूज है वो एक समराइज कर देता है एक वीडियो में। जस्ट वॉच दैट वीडियो। अच्छा, एक इरफान का सवाल आया है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज टू डू लर्न एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप देखें प्रोग्रामिंग की साइड से लर्न करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाहते हैं उस पर, और डेवलपर है और टेक्निकल बंदे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपकी बेस होनी चाहिए, भले वो पाइथन हो, सी हो, जावा हो, कुछ भी हो। Python I would recommend because you would probably find a lot of tool libraries, lot of support and all those things in that area. And it's very easy to learn also. तो वहां से एटलीस्ट लर्न करें अगर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग साइड से आप देख रहे हैं। और दूसरा, एआई को यूज करें पाइथन लर्न करने के लिए। आपने बेसिक सीख ली, छोटा सा कोर्स कर लिया, W3 स्कूल से कर लिया, कहीं से भी कर लिया, और आप क्या करें उसके बाद आराम से एआई यूज करें, कुछ चीज बनाना शुरू करें, कोई ना कोई नई चीज बनाए, देख के कैसा मैंने इम्प्लीमेंट करना है इन चीजों को। अच्छा जी, बताया आपका क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट वांट्स टू बिकम एन एआई प्रोग्रामर राइट नाउ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग एआई प्रोजेक्ट फॉर आवर पोर्टफोलियो एज अ स्टूडेंट? गुड क्वेश्चन। के सबसे पहला इसमें तो प्रोग्रामर अगर आप हैं तो सेलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ चॉइस दैट यू हैव। सेकंड थिंग मैं आपको क्या बोलूंगा, लुक फॉर एनी व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू बिल्ड। जैसे फर्स्ट करें आप कोई इमेज रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट करें पाकिस्तान के लिहाज से आप देख लें, आप बोलते हैं कि यार मेरे पास जो ना मुझे ट्रांसलेशन वाली चीज यूज करनी है कि एक तरह की ऐप बनानी है जिसमें मैं सिंधी से पंजाबी, एक बंदा सिंधी एक पंजाबी आपस में बात करें तो बड़ी इजीली कर लें। या आप करें कि मैंने जो XYZ जो भी आपका प्रोजेक्ट आपका पोर्टफोलियो है आप उसको सोच लें, देन लुक फॉर के हगिंग फेस पे जाएं, देखें व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स आर ऑलरेडी देयर व्हिच आर डूइंग इट, ठीक है? हगिंग फेस पे जाके उसको जाएं, फ्री है, ओपन सोर्स से डाउनलोड करें, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, ट्राई टू मेक एन एप्लीकेशन आउट ऑफ इट, प्ले विद इट, लोकल उस पर करें, प्लेग्राउंड बने हुए उसके ऊपर बैठ के करें एंड डू दैट पार्ट। तो दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड के पोर्टफोलियो बनाने के द फर्स्ट स्टेप इज, जैसे मैं आपको वाला देता हूँ, फर्स्ट स्टेप एक्चुअली रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लर्निंग के जब एज अ प्रोग्रामर के लिए डीप लर्निंग.io, डीप लर्निंग.ai,
इधर से पहले तो थोड़े थोड़े से शॉर्ट कोर्सेज कर लें आप। इधर आपके हाई लेवल पे और डेवलपर लेवल के सारे कोर्सेज मौजूद हैं deeplearning.io पे, और फ्री में मौजूद हैं। कोई पैसा आपने नहीं देना इसमें। आपने अगर आप उस पर डेवलपर पे सर्च करेंगे कि मुझे इंटरमीडिएट डेवलपर टाइप के चाहिए, तो वो आपको डेवलपर टाइप के देंगे, किस लैंग्वेज में, किस तरह आपने मॉडल्स बनाने हैं। एआई पाइथन फॉर बिगनर्स एक कोर्स पढ़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना, कि पाइथन कैसे यूज करनी है, एआई की लाइब्रेरी यूज करनी है। काफी लोग हैं अगर आप जाएं जिन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, आईफोन एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, पर पीछे एपीआई यूज हो रही है। तो थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, व्हाट प्रोजेक्ट यूर डूइंग, पीछे से आपने एपीआई यूज की, ओपन एआई की, क्लाउड की, परप्लेक्सिटी किसी की, उसकी फ्रंट लाइन एप्लीकेशन क्या है, और उसका इंटरफेस आपने बनाया, उसमें भी आप एआई यूज करें, स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट। Thank you so much, sir. Sir, as we're moving towards our conclusion, a final note from you before we close. फाइनल नोट मेरा वही होगा जो मैंने शुरू में बोला, प्लीज 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 एवरीवन, spend some time, dedicate some time, use your smart devices, phone that you have for some good purpose. Watch at least one video or follow one guy who's summarizing on social media about the AI. Keep up to date what is happening in the world of AI, number one. So start learning, spend time consistent basis. Number two, whatever you're learning, find a way to share it, educate it, share with other folks also, influence, motivate other folks, or use ETL community, right? वहाँ पे share करें. Number three, take the next step कि उसको आप अपने better use के लिए कैसे करें. Learn some. Number three, actually, now start taking those some free courses which are already there, right? भले आप programmer हो या user हो या कुछ हो, and use those apps as on daily basis that you have. Number four thing, start building something using AI just for the playground. मैंने आपको सामने अभी एक 30 सेकंड में गेम बना के दिखाया, राइट? थिंक अबाउट, आपने कोई छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनानी है, अपने टास्क क्रिएट करने की बनानी है, या आपने डेली जर्नल की बनानी है, यूज द एआई टू बिल्ड दैट फॉर यू। डाउनलोड करें, अपने पास इंस्टॉल करें, अपना वेब सर्वर डालें, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोस, राइट? और जो भी आप ये काम कर रहे हैं ना, हैव अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन to showcase your learning and your work, right? उसको के जंगल में मोर नाचक किसने देखा? तो शेयरिंग से ये फायदा होता है। आपने कोई कोर्स किया, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर डालें, शेयर करें, कोई आर्टिकल लिखें, एआई को यूज करें, आर्टिकल करें, यूज करें, राइट? दूसरे लोगों से शेयर करें। तो दैट विल बी माय पार्टिंग वर्ड, बी कंसिस्टेंट, डोंट जस्ट गेट एक्साइटेड आफ्टर टुडेज सेशन एंड वर्क एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट फॉर 5 वीक्स। तो एवरी वीक का सैटरडे का रख लें, संडे का रख लें, दोस्तों को बुला लें, बोले यार हर हफ्ते बैठ के चलो ये करेंगे, एक मीटिंग रख लेते हैं और शेयर करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, बोले यार इस पे शेयर करते हैं, आज जिसने जो चीज लर्न की उसको शेयर कर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, sir. I'll just take a moment to share my screen with you because I just want to show everyone something. I hope everyone can see my screen. I've shared it right now. Can everyone see this? जी नजर आ रही है जी। Ji. So I would ask all our members to join this community portal. And this is our space for AI, machine learning, and data science. We have all our featured videos from Sir Kashif over here. Do visit them. और हमारे पास यहाँ पे और भी मजीद events होंगे. You can ask about them. Post all your AI related queries, and Sir Kashif will be here to answer all them. बिल्कुल। और मैं बोलूंगा जो आज हमने जितनी भी बात की, जो टॉपिक डिस्कस किए बेसिक लेवल पे, ये आई स्पेंड सो मच टाइम टू बिल्ड दोस 5 वीडियोस, और another working on another 5 videos to just talk about simplify things. तो आप kashiahmed.com पे मैंने चैट में भेजा है, इधर यू कैन गो टू kashiahmed.com, और या kashidhq.com पे मेरा यूट्यूब चैनल है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। सो आई हैव बोथ यूट्यूब चैनल्स। तो अगर आपने इंग्लिश में वीडियोस देखनी है, या दूसरा जैसे मैंने शेयरिंग की आपसे बात की, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने बाकी जितने भी आपके अहला अहवाल हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, ये इनको आप शेयर करें कि यार ये चीज़ है ना, उर्दू चैनल में आपको भेजा हूं, कि एटलीस्ट वीडियो देखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी कर लें कि यार ये हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इंग्लिश में भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, और वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बनाता रहूंगा, कि जिससे आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द नॉलेज फॉर यू गाइज,
कि एआई में हो क्या रहा है और क्या क्या इंडस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए, और ईटीएल कम्युनिटी पे हम शेयर करते रहेंगे। तो कोई भी फीडबैक हो, एनीथिंग टेल अस, हम लोगों को बताएं कि आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह हम आपके यहाँ से हेल्प कर सकें, ताकि वी कैन एक्सपेडाइट द लर्निंग पाथ फॉर यू। Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining. We'll be signing off now. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।